the difference between identity and equation. So the difference between, clear है sound, video? सब कुछ क्लियर है सर. Okay, I was explaining the difference between identity and equation. So identity इस word में ही इसका meaning है कि it is identical, means left hand side is always equal with right hand side for all values of variable, for all values of here a and b. But in case of equation, if I substitute x is equal to -5, only for x is equal to -5, okay, only for x equal to -5, LHS will be equal to RHS. So this is the difference between identity and equation. Identity is true for all values of variables, but equation is true only for very few values of variable. जैसे यहाँ पे एक वैल्यू है x equal to -5, उसके लिए वो इक्वेशन ट्रू मिलेगा. ट्रू मिलना मतलब क्या है, LHS और RHS इक्वल रहेगा ओनली फॉर x equal to -5. बट इन केस ऑफ आइडेंटिटी, LHS is equal to RHS always for all values of the variables. This is the difference between identity and equation. ये याद रखना है. तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन में हमें वेरी फ्यू वैल्यूज ऑफ x मिलेंगे जहाँ पे LHS और RHS इक्वल बन सकता है, लेकिन आइडेंटिटी में हमें निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ता क्योंकि सारे वैल्यूज के लिए वो हमेशा इक्वल रहता है. So please remember this difference. Now we will see in JEE level some questions of quadratic equation chapter. When does equation gets converted into identity? That we will see later in the chapter called quadratic equation. So we are discussing identities, means they are true for all values of the variables. LHS will always be equal to RHS in these identities. Next, number 6, we get the formula number 6 as a cube plus b cube is equal to, in one bracket a plus b, another bracket a square minus ab plus b square. Okay, इसको प्रूव करने के लिए हम RHS लेंगे. राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करके देखते हैं. So when we do multiplication of these two brackets, I will have to multiply by a to second bracket plus b से भी second bracket को multiply करना पड़ेगा. So a into a square minus ab plus b square plus b into a square minus ab plus b square. So it will become a cube minus a square b plus ab square plus a square b minus a square b, ये आ जाएगा प्लस बी क्यूब. तो आप देख सकते हैं कि माइनस ए स्क्वायर बी, आई एम सॉरी, मल्टीप्लीकेशन में सेकंड में गड़बड़ हो गया. यहाँ प्लस ए स्क्वायर बी, यहाँ माइनस ए बी स्क्वायर आएगा. तो minus a square b plus a square b cancelled, ab square minus ab square will get cancelled, and what remains is only a cube plus b cube, which is nothing but left hand side. So this is how we get this identity number 6. A cube plus b cube is equal to a plus b in one bracket multiplied by a square minus ab plus b square in another bracket. Next, number 7, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो. Taken, sir. Number 7, a cube minus b cube is equal to, in first bracket a minus b, in second bracket a square plus ab plus b square. दोनों में फर्क इतना ही है, यहाँ पे प्लस है तो पहले ब्रैकेट में यहाँ प्लस आता है और यहाँ सेकंड टर्म निगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस आ रहा है और यहाँ पे ये वाला साइन पॉजिटिव ही आ रहा है. सो इट इज जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग हाउ टू रिमेम्बर. अभी यहाँ भी फिर से हम RHS को सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखेंगे तो हमें वही आंसर मिलेगा. मैं अभी ओरली
मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर मिलेगा, माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होगा और हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही मिलेगा, दैट इज LHS। ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 8, इफ देर इज सम ऑफ 3 नंबर्स 3 लेटर्स और उसका स्क्वायर है, so the answer we get is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। अभी इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, डू वी रियली गेट दिस एज द आंसर। तो LHS देखेंगे a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसको लिखते वक्त हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि a प्लस बी इज अ फर्स्ट टर्म एंड c इज द सेकंड टर्म। वी हैव सीन आवर फर्स्ट फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में हमने देखा कि अगर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर रहता है तो उसका आंसर हमें मिलता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्लस सेकंड ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा a प्लस बी मैंने फर्स्ट अज्यूम किया, फर्स्ट नंबर फर्स्ट लेटर, एंड द c इज सेकंड वन। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इज a प्लस बी इंटू सेकंड इज c प्लस सेकंड का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर। ओके, तो like this we have used the formula here, a plus b bracket square plus 2 into a plus b into c plus c square। Now we can simplify this a plus b bracket square by using our formula a square plus 2ab plus b square plus यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 इंटू सी ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है। Now we can get here 2ac plus 2bc plus c square। मैंने क्या किया, इस 2 और c से ब्रैकेट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई किया a और b को, so 2ac plus 2bc। Now we can write properly, a square पहले लिख लिया, बाद में ये b square लिख लेते हैं प्लस c square लिख लिया, then we write 2ab plus 2ab plus 2bc प्लस 2ac, ac को चाहे तो आप 2ca भी लिख सकते हैं। ओके, तो यही मिला हमें RHS, देख सकते हैं आप। ठीक है, इज इट क्लियर, एक्सप्लेनेशन समझ में आया सबको? सो दिस इज आइडेंटिटी नंबर 8। एक्सप्लेनेशन समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके, टेक स्क्रीनशॉट, लेटर यू कैन राइट डाउन। Taken, sir. मैं बाद में एट द एंड आई विल सेंड द फोटोज ऑन द ग्रुप ऑल्सो, अगर किसी के बच जाते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 9, ये आइडेंटिटी रहेगा अभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c माइनस a ब्रैकेट स्क्वायर। सो दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 9। इसका हम RHS लेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को अगर मैंने सिंप्लीफाई किया, हाफ इन ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर, सो हाफ बाहर ही रहने दो, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारा सेकंड आइडेंटिटी, प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस c square minus 2ca plus a square। Now you can see
ये सेकंड आइडेंटिटी आपको याद आ रहा होगा, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, ऐसे। सो दैट वी हैव सीन यस्टरडे। उसी का यूज करके हमने तीनों ब्रैकेट को एक्सपांड किया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2 टाइम्स ए स्क्वायर मिलेगा। वैसे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। सिमिलरली सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी स्क्वायर आएगा। बाद में ये माइनस 2ab लिख लेते हैं, माइनस 2bc लिख लेते हैं, एंड देन माइनस 2ca लिख लेते हैं। अभी हाफ जो है ना, तो दैट मीन्स वी विल हैव टू divide by 2 to each and every term, or you can say take 2 common from all the terms। तो 2 common अगर लिया हमने तो बाहर वो 2 आएगा और ये अपॉन में 2 है, और यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया बाहर, ये 2 कैंसिल होगा, एंड दिस इज नथिंग बट अवर LHS। LHS is a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। ऑफ कोर्स ये आइडेंटिटी रेयरली डिस्कस होता है, लेकिन ये 11th लेवल में बहुत जरूरी है, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी क्या क्या रीजंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज हाउ वी गेट दिस आइडेंटिटी। इसका प्रूफ हो गया। अभी इसके हमें कुछ केसेस मिलते हैं, तो वो केसेस हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, this will always be greater than equal to 0। it will never be negative। ओके, सो यहाँ पे ऐसे नोट करके लिख लेते हैं हम इसके नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इसका राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करो। राइट हैंड साइड इसका हमें मिला था हाफ इन ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर। अभी आप ही सोचो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है या तो जीरो भी हो सकता है, जीरो का स्क्वायर जीरो आता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब, और ये तीनों का सम है, एडिशन है, तो ये हमेशा पॉजिटिव तो रहने वाला है। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी किसी नंबर का स्क्वायर जीरो, मतलब जीरो का ही स्क्वायर जीरो आता है, तो अगर ये तीनों ब्रैकेट 0 0 0 हो जाते हैं तो उस केस में इसका आंसर इक्वल टू 0 भी आ सकता है। तो अगर राइट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम इसीलिए बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। ओके, और एग्जैक्टली अगर मुझे इसमें केस 1 में ऐसे लिख रहा हूँ कि एग्जैक्टली मुझे बताना है कि ये वाला लेफ्ट हैंड साइड जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 कब आएगा, तो हम बोलेंगे कि इफ a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। ऐसा क्यों वो भी पता चलेगा। और एग्जैक्टली इसमें 0 कब आएगा, ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 इफ ऑल थ्री आर इक्वल। तो देखो क्या होगा, अगर a और b a b c तीनों इक्वल हो जाएंगे तो ये जो सब्ट्रैक्शन है ये 0 0 मिलेगा, a माइनस बी 0 मिलेगा, b माइनस सी 0, c माइनस ए 0 मिलेगा, तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आएगा। इसीलिए ये सेकंड केस हमने लिखा कि तीनों वेरिएबल का वैल्यू अगर इक्वल है तो फिर ये इक्वल टू 0 आएगा। इसमें दो केसेस छिपे हुए हैं, वन इज ग्रेटर देन 0, वन इज इक्वल टू 0। So I am discussing when exactly it is greater than 0. So it will be greater than 0 when these three values are unequal, a b c are unequal। unequal जब होंगे तो ये a minus b, b minus c और c minus a कभी 0 नहीं आएगा, they will always be positive। तो इसके कारण हमेशा ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा, और इक्वल टू 0 का केस आएगा जब ये तीनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे। ये केसेस दोनों समझ में आए क्या?
हाँ Yes. बोलो ना बोलो, कुछ तो बोलो। Yes, sir. सर एक एग्जाम्पल देकर बताओ ना। यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर आप ऑब्जर्वेशन अच्छे से करेंगे तो, क्योंकि एग्जाम्पल लेते हैं तो एबीसी के 3 वैल्यूज हमें यहाँ पे डालने पड़ेंगे, और आप ऐसा करके देख सकते हैं कि एबीसी के 3 अनइक्वल वैल्यू डाल के देखो, एबीसी के तीनों इक्वल वैल्यूज डाल के देखो, तो आपको इस केस में अनइक्वल के केस में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आंसर मिलेगा, और सेकंड केस में इक्वल टू 0 आंसर मिलेगा। जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली, सी राइट हैंड साइड ये था हाफ इन ब्रैकेट a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि a और b और c तीनों को इक्वल ले लो, तो इक्वल लेने के बाद क्या होगा, ये a माइनस बी का वैल्यू जो है दोनों इक्वल है, a और b इक्वल माइनस इक्वल 0 आएगा, वैसे b और c भी इक्वल है तो इसका भी वैल्यू 0 ही आएगा, c माइनस ए भी 0 आएगा, तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर आंसर विल बी 0 ओनली। सो देयरफॉर वी आर टेलिंग दैट राइट हैंड साइड 0 आ रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आएगा, और तीनों को हमने अनइक्वल लिया तो फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन 0 नहीं आएगा जब ये तीनों अनइक्वल रहेंगे। क्लियर? अंजलि आपने ही पूछा था ना? यस सर। ओके चलो, तो ये 2 केसेस, चलो इसके दोनों के स्क्रीनशॉट लेके रखो। Taken. राजनंदिनी को हॉलीडे का चिंता है क्या? बेटा कल पता चल जाएगा, मुझे भी पता नहीं हॉलीडे है कि नहीं। सर आपने कल कंफर्म बोला था ना। हाँ क्या? ठीक है, फिर कंफर्म हॉलीडे है। आप लोग छोड़ते नहीं टीचर को, जब तक वो सरेंडर नहीं करता टीचर। सर मत रखो हॉलीडे सर। That you are giving speech, sir. नो नो नो, थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको शिवाजी महाराज के बारे में एट द एंड ऑफ द लेक्चर, नॉट इन बिटवीन। चलो ये दोनों नोट का भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में लिख लेना। Taken, sir. नेक्स्ट और एक बचा है अभी, नंबर 10, लास्ट वन। दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी इज लाइक दिस। ये सारे में बेटा, ये सारे जो आइडेंटिटीज है दिस आर ऑल फ्रॉम आर डी शर्मा बुक 9th स्टैंडर्ड, जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स फैक्टराइजेशन चैप्टर है, आइडेंटिटी चैप्टर, सॉरी आइडेंटिटी चैप्टर है उसमें। सो सीबीएसई लेवल का है ये सब डिस्कशन, क्योंकि मुझे सारे टाइप के फैक्टराइजेशन कवर करने थे। देखो एक्चुअली क्या हो गया अभी यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फैक्टराइजेशन हो गया, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 ब्रैकेट्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला ये भी फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे ये फॉर्मूले एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ क्योंकि इनका हमें यूज करना है, we may have to use them for solving many different questions. Next, last one is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to, in first bracket a plus b plus c multiplied by, in the second bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। ये सेकंड ब्रैकेट तो आपके पहचान का ही है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था 9th आइडेंटिटी में, वो सेकंड ब्रैकेट आ गया, और फर्स्ट ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है a प्लस बी प्लस सी, तीनों का एडिशन, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये आइडेंटिटी नंबर 10 है। इसका प्रूफ मैं नहीं बताने वाला, इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू एक्सप्लेन, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन आएगा राइट हैंड साइड का, a मल्टीप्लाइड विथ सेकंड ब्रैकेट, b विथ सेकंड ब्रैकेट, c विथ सेकंड ब्रैकेट, एंड देन कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन,
you can try to do by yourself and cross check. This is the identity. You will surely get left hand side when you simplify right hand side. So I won't explain the proof to save the time. Now a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to product of two brackets. Now we will discuss here some few cases of when will be a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to 0. ये exactly equal to 0 कब आएगा? या तो फिर इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc. मतलब ये माइनस 3abc को आपने राइट में शिफ्ट कर दिया तो 0 प्लस 3abc आएगा. ये दोनों ऐसे कब आएंगे? तो हम बोल सकते हैं कि this will be equal to 0 when either राइट हैंड साइड 0 आना चाहिए. तो राइट हैंड साइड में दो ब्रैकेट्स है, या तो पहला ब्रैकेट 0 आना चाहिए तब ये पूरा राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड भी 0 मिल जाएगा. सो पहला ब्रैकेट है a प्लस बी प्लस सी, दैट शुड बी इक्वल टू 0, और द सेकंड ब्रैकेट शुड बी इक्वल टू 0. और सेकंड ब्रैकेट जो है a क्यूब प्लस b क्यूब सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c 0 कब होता है? जब ये तीनों इक्वल रहते हैं. तो हम बोल सकते हैं सीधा सीधा सेकंड ब्रैकेट 0 होगा, मतलब तीनों वैल्यूज इक्वल होंगे. तो मींस तीनों का सम 0 होगा या तो तीनों इक्वल होंगे. तो इन दो केसेस में ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा. ठीक है, लाइक दैट वी कैन रिमेम्बर. यहाँ पे ये नोट करके नीचे लिख लिया. तो अभी हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे दिए जाते हैं. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने आपको ऐसा पूछा कि फाइंड आउट द 1.2 ब्रैकेट क्यूब प्लस माइनस 1.3 ब्रैकेट क्यूब प्लस 0.1 ब्रैकेट क्यूब. इसका मैंने आपको आंसर पूछा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको कंपेयर करो इसके साथ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब. और ये पहला वाला केस देखो, पहले केस में हमने बोला कि तीनों का सम 0 आता है क्या? तो ये 1.2 प्लस माइनस ऑफ 1.3 प्लस 0.1, इनको हम अगर ऐड करेंगे तो इन तीनों का सम 0 आ रहा है. मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, 0 आ रहा है. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू विल बी डायरेक्टली 3 इंटू abc. तो यहाँ आएगा 3 इंटू 1.2 इंटू माइनस ऑफ 1.3 इंटू 0.1. 3abc इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है. बस अभी मल्टीप्लाई करने. अब क्यूब लेके बैठेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा. So this particular condition can be used in this case. Okay. तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं. उसके मैं आपको PDF या स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा, PDF बना के भेज दूंगा. और ये 10 आइडेंटिटीज के ऊपर के जो क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे. पहले हमें अभी कवर करना है वर्कशीट, हमारा फैक्टराइजेशन चैप्टर का वर्कशीट, हमारा जो स्टैंडर्ड नोट्स है उसमें से. ठीक है, तो ये 10th आइडेंटिटी था. इसका नोट भी याद रखो कि वो कब 0 होता है. 0 होता है मतलब इन तीनों के क्यूब का एडिशन 3 टाइम्स तीनों का प्रोडक्ट मिलता है. ये भी सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. Now let us continue our solving of worksheet. अभी देखो वर्कशीट सॉल्व करना बहुत आपको आसान लगेगा क्योंकि हमने अभी आइडेंटिटीज भी सारे डिस्कस कर लिए. ये 10 आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन सब का यूज करना है हमें यहाँ पे
So please make good note of all of them. नोटबुक में अच्छे से नोट्स निकाल के रखो, ये आइडेंटिटीज वर्कशीट में नहीं दिए हुए. Now let us try to solve the worksheet. So देखो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है a square plus 2ab square plus b raised to 4. As soon as I see like this, something should click to my mind that this is of the form a square plus 2ab plus b square. इस फॉर्म का है ये. वो जो हमारा पहला आइडेंटिटी था, पहले आइडेंटिटी मैं उल्टा लिख रहा हूँ और कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ a square plus 2ab plus b square, we get it as a plus b bracket square. a plus b bracket square का मतलब ही है कि it is a plus b into a plus b, means we have converted addition into product, that means it is factorized. तो यहाँ पे ऑप्शन देख के भी वो हिंट मिल रहा है कि दिस हैज टू बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ समथिंग, स्क्वायर आना चाहिए. तो इसको अब लिखते वक्त ऐसा लिखेंगे a स्क्वायर, a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b स्क्वायर प्लस b रेज टू 4 को लिख सकते हैं b स्क्वायर का स्क्वायर. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर उसका ब्रैकेट स्क्वायर. सो देयरफॉर ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट. ठीक है, बस खाली चेंज क्या होगा, यहाँ पे जो सेकंड b है कैपिटल B, उसके जगह यहाँ पे b स्क्वायर हमें लिखना पड़ा क्योंकि b रेज टू 4 मतलब b स्क्वायर का स्क्वायर आता है. ठीक है, इफ यू कंपेयर दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट विद दिस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आपको कैपिटल A का वैल्यू स्मॉल a मिलेगा और कैपिटल B का वैल्यू b स्क्वायर मिलेगा. तो इसीलिए फाइनली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऑप्शन 2 इज करेक्ट. समझ में आया सबको? Yes. So that's why we discussed identities first, although they are not given in the worksheet. हमारे सिनॉप्सिस में वो नहीं दिए थे क्योंकि आइडेंटिटीज का यूज बहुत जगह होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. एक्चुअली हमने क्या किया, एडिशन को इस पावर में एक्सप्रेस किया, दैट मीन्स वी हैव एक्चुअली फैक्टराइज्ड. चैप्टर का टाइटल फैक्टराइजेशन है. फैक्टराइजेशन कहाँ पे हो रहा है, ये ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब ये सेम ब्रैकेट खुद के साथ 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है. सो इन शॉर्ट वी हैव कन्वर्टेड एडिशन इनटू प्रोडक्ट. सो दैट इज नथिंग बट फैक्टराइजेशन. बट ऑफ कोर्स फैक्टराइजेशन के वो 4 केसेस तो है ही जो सिनॉप्सिस में दिए, उसके साथ साथ आइडेंटिटीज भी यूज करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए तीनों टर्म्स में ए कॉमन दिखाई दे रहा है. तो पहले हमें वो एक केस यूज करना पड़ेगा जो केस 1 था हमारा. उस केस में हमने क्या देखा था कि अगर एक मोनोमियल, एक मिनट चार्जर लगाता हूँ. तो केस 1 में हमने ये देखा था कि एक मोनोमियल, व्हेन अ मोनोमियल इज कॉमन फैक्टर टू ऑल द टर्म्स. तो सारे टर्म्स में यहाँ पे जैसे x और 2 कॉमन निकाला था हमने, 2x कॉमन निकाला था, यहाँ पे a कॉमन निकाला गया. वैसे ही ये सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसमें एक मोनोमियल कॉमन आ सकता है और आप चाहे तो न्यूमेरिकल फैक्टर भी, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 है इसलिए HCF तो 1 ही आएगा. सो फॉरगेट अबाउट द नंबर्स, ओनली A वाला. अभी A का यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 3 है. तो जो लोवेस्ट पावर वाला टर्म होता है वही HCF रहता है. तो a क्यूब हमें कॉमन निकालना पड़ेगा तीनों टर्म में से. सो नाउ इफ आई टेक a क्यूब कॉमन, यहाँ पे क्या रहेगा, 9a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस b स्क्वायर. ओके, अभी इसको मैं a क्यूब तो ऐसे ही है, आप देख सकते हैं कि a क्यूब यहाँ 4th ऑप्शन में और 1st ऑप्शन में कॉमन निकाला गया.
और दूसरा वाला ब्रैकेट है ये 3a माइनस बी है, ये 3a माइनस बी का स्क्वायर है। तो मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट आएगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर लेके देखेंगे आप 3a माइनस बी का तो यही मिलेगा। चाहे तो हम इसको अभी पहले फॉर्मेट में लिखते हैं। 9a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इट इज लाइक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट का है ये। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कंपेयर करके फर्स्ट माइनस सेकंड ब्रैकेट स्क्वायर। सो देयरफॉर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि हमें फॉर्मूला पढ़ा हमने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमेशा यहाँ a b आना चाहिए। a के जगह यहाँ पे 3a आ गया, ओके, और b के जगह b ही है। So that places could be replaced by some another different variables that has to be compared and observed. Is it clear? सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 नंबर का होल स्क्वायर है ऑप्शन में। तो होल स्क्वायर वाला हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा है, वो 3 वाला देखा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर देखा है। दिस यस 8 1। तो वहां पे हमें क्या मिला था कि ये तीनों का स्क्वायर आ गया था और फिर 2 इंटू 2 का प्रोडक्ट ए बी बी सी सी ए, ऐसे लाइक दैट वी गॉट। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के हमें पता चल रहा है कि यहाँ 4 नंबर का जो भी है एडिशन सब्ट्रैक्शन उसका होल स्क्वायर लेना है तब ये मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन से 4 नंबर का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। सो क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व दैट x स्क्वायर 4y स्क्वायर 9z स्क्वायर और 16 दिया हुआ है। 16 को लिख सकते हैं हम 4 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ये x का स्क्वायर है ही प्लस इट इज 2y होल स्क्वायर प्लस इट इज 3z का होल स्क्वायर प्लस दिस इज 4 होल स्क्वायर। और फिर बाद में दो टर्म्स जो है उनका हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन 2ab 2bc 2ca जैसे, वैसे यहाँ पे भी दो टर्म का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। सो अभी कौन कौन से 2 टर्म लेने पड़ेंगे वो हमें आइडेंटिफाई करना है, और वो भी निगेटिव साइन कहाँ पे आएगा वो भी चेक करना है। सो दैट कैन बी क्रॉस चेक। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 2y 3z 4 नहीं लेना है, माइनस साइन भी हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है। ओके, मीटिंग एंड होने को आ रहा है। सो शैल वी स्टॉप हियर? Okay, sir. We will continue tomorrow. Remaining questions using identities we will try to solve. अगर आपको टाइम है तो सॉल्व करने का ट्राई करो। ओके, सो थैंक यू ऑल वेरी मच, बाय। अरे समीक्षा, आपका लेक्चर